Thank you, Naga ma'am. It's my immense pleasure to introduce Professor Neelu Chan Gupta ma'am. She is a most loving and charming personality, an eminent scientist, head Department of Zoology, CSS University, Meerut. She is also a convener and chairperson of the head Department of Zoology, CSS University, Meerut. She is a head Department of Hospital Administration, Meerut University, Meerut, and also Assistant Dean Student Welfare. She is a national awardee, University of Delhi from 2012 to 2014. She is a university topper for MSc Zoology in 1989 and MPhil Zoology topper 1990. She is a chief editor, newsletter Indian Society of Chronobiology since 2019 to 2021. Partner startup specialization in chronobiology, professor and head Department of Zoology in MSc Zoology at CSS University, Meerut. Member Secretary, Human Ethical Committee, CSS University, Meerut since 2018 onwards. She has completed many research projects, major and minor, in her lifetime. Words cannot sufficient for explaining her, so I just calling the ma'am to share her views on the topic lifestyle with COVID-19 pandemic. Most welcome, ma'am. Please come. Thank you, Dr. Hridesh Arya. I think I'm audible. Yes. Thank you for a dais to speak on where Professor Y. Vimla, our honored Pro Vice Chancellor, is chairing the session. Is always a pleasure. And thank you, NREC College, Madam Savita Nagar, Dr. Hridesh Arya, Principal Sahab, for giving me a chance to speak up here. And Dr. Hridesh Arya, I would need one help that I need to share my screen when I'm talking about the topic. So could you please ask your organizers to help me, because the share option on the screen is not highlighted at this point. So please help me share the screen so that I can turn my PowerPoint on and start talking about the topic. Ma'am, you can share the screen. You are the presenter now. Okay, I open my, now, is it visible? Yeah, visible, ma'am. Yeah, the PowerPoint is visible. So, I had chosen a topic, lifestyle with COVID-19 pandemic. And the idea of bringing up this topic is because we are all scientists, we are all doing some science in our lab, but there is one thing that we all realize from core of our hearts is responsible science. And we often say science should live up to public demands, but I've just tried to include this as responsible science always lives up to timely demands. So what has COVID-19 actually highlighted as a scientific pursuit for all of us, and we need to have better scientific strategies. So we've been hearing about things like boost up your immunity, how much of healthcare facility is available. Last week, Delhi was much of a hot topic because of the lack of facilities. And then we are often discussing, are people actually observing precautions? And I add another dimension to it. Are we really watching out our lifestyle on the basis of the scientific dimensions that this COVID pandemic demands? Excuse me, Dr. Gupta, screen is not visible. Yeah, that's what I said. Yeah. Okay. That's what I was asking. Share screen is important. Yeah. Still, it is not visible, ma'am. When I highlight this web disco, so my screen, share my screen, okay? Yeah, now it's coming. Now it's visible? Okay, yeah, we can see. So I have spoken it. Yes. I will not, I think that's what I was asking at that time. Right, thank you. Yeah, so we have to consider these dimensions. And as soon as I start talking about science,
I come to my favorite topic and my lifetime pursuit, which is working on day and night. So we are all tied up with the day and night cycles. And a child, when it is born, randomly sleeps or stays awake. So there is no fixed timing to his sleep or, wake up regimes. But by the time the child becomes 6 to 8 weeks, he starts into staying awake in the day और रात में सोना है, दिन में जागना है. मदर के regime से coordinate करके और synchronize करके the child gets tuned with the daily life cycle. So is it really important to get synchronized? Yes, it is. And the science says that lifestyle is the one thing. And this is why the science says that lifestyle is one thing where everybody must adapt and stick to these light-dark cycle regimes. That means if you are meant to be diurnal, you have to be eating in the day, not in the night. So when you're not eating, it is fasting. So it is light, dark, and eating fasting cycles. Right. So my audibility is clear now because I just got a... Okay, right. I'll continue. So I'll talk about two things, food and day and night in the ongoing conversation. And if you want, I can be bilingual. एक स्टडी हुई थी 2012 में चूहों पर, जिसमें उन्होंने कुछ चूहों को हाई फैट डाइट दिया, नॉर्मल चाव और हाई फैट डाइट आप देख सकते हैं. और एक दो चीजें होती हैं जूलॉजी में जिनको हम कहते हैं एड लिमिटम, यानी सारे दिन आप खाते रहिए, खाना स्वतः अवेलेबल है. और लेकिन अगर आप उसको डेजिग्नेटेड टाइम में दें, बिकॉज माइस ईट इन द नाइट, दूसरे ग्रुप ऑफ माइस को उन्होंने सिर्फ रात में खाना दिया, जिसको हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग कहते हैं. और सिर्फ बराबर मात्रा में खाने के बावजूद जो चूहे जिन्होंने डेजिग्नेटेड टाइम में खाया था वो काफी लीन भी थे और उनके कई सारे पैरामीटर्स जिनको हम डायबिटीज से कनेक्ट करते हैं वो काफी बेटर थे. कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, ब्लड शुगर, बॉडी फैट कम हो गया. तो इस साइंस ने जो कि 2012 में सेल मेटाबॉलिज्म में पब्लिश हुई थी यूएस की हमारी कोलैबोरेटर लैब से, काफी एनकरेज किया. काफी it was a hot selling cake at that time, this kind of research. And then we also start asking people, आप दिन में कितनी बार खाते हैं? सब कहते हैं 3 बार. मैं अभी आपसे पूछूंगी, आप कहेंगे बस नाश्ता, लंच, डिनर. हाँ, वो चाय दिन में कभी कभी हो जाती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा. सो वी वेंट टू कलेक्टिंग द पिक्चर्स. हमने करीब 26,000 रिकॉर्ड्स लिए करीब 100+ लोगों से और उनको एनालाइज किया, उनको टाइम स्टैम्प किया. और जो लोग रिलीजियस फास्टिंग भी करते हैं उनको भी हमने एनालाइज किया. एंड देन दिस इज हाउ, ये जो सारे डॉट्स आपको दिख रहे हैं, एक फिगर दिख रहा है, आई होप इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. तो आप देखिए कि लोग किस तरह से दिन रात, बिकॉज हमने उनसे कहा कि जो भी आप खाएंगे आप उसकी पिक्चर खींचेंगे. हमारे पास एक डेजिग्नेटेड ऐप है यूएस से, और ये देखिए कि कुछ लोग तो इसमें, यहाँ पर मैं एरो दे रही हूँ, देखिए कुछ लोग तो लगातार दिन रात खाते रहे. और फिर हमने इनको 2 कैटेगरीज में बांटा, वो जो दिन के 14 से 15 घंटे में खा रहे थे, एंड दोज हु कंटिन्यूड ईटिंग अप टू 23 आवर्स अ डे. दिस वाज अमेजिंग. और ये स्टडी जब हमने इसको प्लॉट किया तो आप देख सकते हैं 4 बजे हम सुबह मान रहे हैं और 4 बजे से 28 यानी दिन के 24 घंटे में पीपल आर ईटिंग कंटिन्यूअसली. दिस स्टडी वाज वेरी वेल रिसीव्ड. एंड अनदर थिंग, एक तो हुआ आप दिन में कितने समय खाते हैं, लाइफस्टाइल कैसा है कि आप सुबह उठे, फ्रिज खोला, कुछ एक फ्रूट निकाला, नेबल कर लिया, बादाम निकाला, खा लिया. रात को 11 बजे आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और फिर अचानक से भूख लगी, आपने एक कुकी निकाली, खा ली, या एक कप कॉफी जागे रहने के लिए पी ली. तो आपकी बॉडी जो समझ रही है ये वो है. और हमने एक और चीज बहुत खास ऑब्जर्व की इस स्टडी में कि कम से कम अपना 1/3 डाइट का हिस्सा रात में खाते. ये स्टडी काफी वेल रिसीव हुई, 2017 में पब्लिश हुई. और फिर हमने इस पर एक थीम बनाया जो आज मैं आपको लाइफस्टाइल में हम कैसे खाने के द्वारा अपने लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करते हैं, ये मैं आपको अगली 2 पिक्चर्स में दिखाने जा रही हूँ. और ये है हमारा एक भी डाइट, कोई भी डाइट आप यहाँ से लीजिए और इसे इस 24 आवर्स पे प्लॉट कर दीजिए. फिर आप और दूसरे एक डाइट को लीजिए. ये लाल डंडी जो है ये पानी की है और हरी डंडी जो है वो खाने की. तो एक थीम है जो बायोलॉजिस्ट या जूलॉजिस्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और सर्काडियन, सर्का माने अबाउट एंड डे, हमारी बॉडी की लाइफस्टाइल जिस पर डिपेंड करता है उससे कनेक्टेड साइंस है.
सर्कैडियन क्लॉक्स, हमारी बॉडी में एक क्लॉक होती है जिसको हम सर्कैडियन क्लॉक कहते हैं, और जब हम देर रात तक खाते हैं तो हम और कुछ नहीं करते, हम अपनी उसी सर्कैडियन क्लॉक को डिस्ट्रप्शन कर देते हैं उसको, यानी कि हम उसकी गति को, पेस को चेंज करते हैं। अपने हाथ की घड़ी को रोज रीसेट करते रहिए तो देखिए कि वो कैसे रोज ही रीसेट हो जाती है, कुछ दिन बाद खराब हो जाती है। और यही हम खाने के द्वारा अपनी जैविक घड़ी से करते हैं। तो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप शाम का खाना थोड़ा जल्दी खा लीजिए, सोने से कम 4 घंटे पहले आप इस खाने का या जो भी खाना आप लेते हैं खा लीजिए, और इसी को हम कहते हैं सर्कैडियन रेगुलेशन या टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, जिसका जिक्र मैं आपसे चूहों की रिसर्च में कर रही थी। आपको एक निश्चित अवधि में खाना खाना है, जागिए सोइए वो अलग चीज है, लेकिन आपको खाना एक निश्चित अवधि में खाना है, एंड दिस इज व्हाट टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग इज। नाउ द पॉइंट इज, डज इट हेल्प? द ऑडियंस ऑलवेज वांट टू नो कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है, ये मैं आपको डेटा दिखा रही हूँ KGMU के एक डॉक्टर साहब का, जिन्होंने 2.5 घंटे हमारे वॉलंटियर की तरह काम किया, और उनका HbA1c खुद का 9.6 था, बट एज सुन एज ही अडेप्टेड अवर regime, his next HbA1c after 3 months was 7.2. So it is so effective. So idea is that people who claim that they are eating actually twice a day are actually eating throughout the day and getting obese. So this is where we have to change our lifestyle, correct our eating timings, and very briefly, because I want to spread the message as far as I can, I'll take up what is the sleep idea, how we are disrupting our sleep by disrupting our lifestyle. So as I was talking, the input is in two forms. One was food and another is light. देखिए, मानव मस्तिष्क जब तक सोता नहीं है या आंख बंद नहीं है तब तक अंधेरे में नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं रूम में कितनी लाइट इंटेंसिटी है, लेकिन आपका ब्रेन जो परसीव कर रहा है वो तब तक लाइट या विजिबिलिटी ऑफ नहीं होती जब तक आप लेस देन 1 लक्स रूम में ना हो और आपकी आईलिड्स क्लोज्ड ना हो। ये दोनों परिस्थितियां आपके सोने के लिए जरूरी हैं। और स्लीप भी ऐसा नहीं है कि आप एक बार सो गए तो स्लीप अपने 5 फेजेस में आती है। यहाँ पर ये जो फिगर मैं दिखा रही हूँ, जिसमें आप गूगल कर सकते हैं, स्लीप अपने 5 फेजेस में आती है और किस तरह से। लेकिन यहाँ ये फिगर दिखाने का मेरा एक ही पर्पस है कि जो हमारी सर्कैडियन रिदम है या जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसको हम हिंदी में जैविक घड़ी या जैविक लय भी कहते हैं, ये जैविक घड़ी अगर हम सही रखते हैं तो उसके लिए हमको कम से कम 6 से 8 घंटे, आप में से बहुत से लोग 30 प्लस या 40 प्लस हैं, तो ये चीज मैं बहुत स्ट्रांगली कह देना चाहती हूँ, वी आर एक्चुअली डिसरप्टिव। मैंने कई लोग को ये कहते सुना है कि हमारा काम चल जाता है, हम 5 घंटे सोते हैं, आई एम फ्रेश आफ्टर आई वेक अप। प्लीज अंडरस्टैंड, योर बॉडी इज नॉट फ्रेश आफ्टर यू वेक अप। A minimum of 6 hours sleep is important for your body, क्योंकि sleep cycle को अपने ये phases complete करने ही हैं। So why it should be important, ये अब मैं आपको कुछ hormonal उससे बताती हूँ। एक sleep hormone होता है melatonin, हमारे ब्रेन से सिक्रेट होता है और इसका लेवल तब हाई जाता है जब हम सोने की प्रक्रिया को या आंख बंद करने की प्रक्रिया को, यानी डार्क में, ये डार्क का मार्कर है तो डार्क में इंक्रीज होता है। और स्लीप के साथ एक और चीज है कि बॉडी आपकी कूल डाउन करती है करीब 1 डिग्री, जो हमें पता नहीं चलता, और सुबह 4 बजे नेचुरल प्रोसेसेस में हमारा बॉडी टेम्परेचर भी राइज होता है और उसके कुछ घंटे बाद मेलाटोनिन भी कम हो जाता है। ये मेलाटोनिन जो है पशु पक्षियों में देखा गया है, काफी सारी रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस को भी रेगुलेट करता है। ये कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, ये कई सारी बीमारियों के अवरोधन का काम करता है। और इसीलिए आप जब देर से बेड पर जाते हैं या रात में कभी जागते हैं या आप अपना अलार्म से डिफाई करके गलत सही समय पर जागते सोते हैं या दिन में आपको नींद आने लगती है, जब आप आफ्टरनून नैपिंग करने लगते हैं, तो एक्चुअली आप अपनी जो सर्कैडियन, क्योंकि सर्कैडियन है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, और इसके अलावा हमारे इंटरनल बैलेंस भी होता है बॉडी का, और इन दोनों का एक बैलेंस होता है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ रेगुलेट होती है। और जैसे ही हम इस बैलेंस को तोड़ते हैं स्लीप को कम या ज्यादा करके,
तो फिर हमारी बॉडी हमको रिएक्शंस देने लगती है। अब ये कोविड के टाइम में मैं इस मैसेज को क्यों स्प्रेड करना चाहती हूँ, अभी मैं आपको आने वाली कुछ स्लाइड्स में दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से, बिकॉज हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, हम सारे काढ़ों की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे एजेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वो चीज जो बिना कोई एक्सपेंस किए हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम दिन रात जाग करके ई सर्फिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं और बहुत सारे काम ऐसे अंजाम दे रहे हैं जो हम देर रात तक करते हैं। तो ये सर्केडियन ड्राइव हमारी स्लीप को कैसे रेगुलेट करती है, बहुत थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बेसिस। देखिए, कुछ जीन्स हैं हमारी बॉडी में जो एक्टिवेट हो जाती हैं जैसे ही हम सुबह जागते हैं, और जैसे ही वो जीन्स एक्टिवेट होती हैं तो वो अपनी स्वतः प्रक्रिया को चालू कर देती हैं। इसमें एक जीन यहाँ पर एक बीमाल-1 के नाम से है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज आई नो वी हैव सम जनरल ऑडियंस, बट स्टूडेंट्स भी होंगे तो उनको बेनिफिट करने के एंगल से ये जो बीमाल-1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सीधे हमारे एटीपी जो हमारा पावर हाउस होता है, जो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं, उनसे इसका सीधा बैलेंस बनता है। तो इसलिए ये बीमाल क्लॉक का जो बैलेंस है, जो हमारी जीनेटिक लेवल पर रेगुलेशन है, हमारी सर्केडियन क्लॉक इसको रेगुलेट करती है। और ज्यादा अगर जरूरत होगी इस नॉलेज की, आई कैन टेक इन क्वेश्चंस, बट मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं, हमने जीन के लेवल पर देखा, हमने फूड को देखा, हमने स्लीप की लेंथ को देखा। यहाँ एक और छोटा सा आयाम मैं लेकर आ रही हूँ, हमारे न्यूरॉन्स। यानी कि कहते हैं कि मैं किसी दिन सो ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो क्यों नहीं सो पाते हैं आप जब आपका दिमाग बहुत एक्टिव होता है? क्योंकि आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली आदत है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिक्रीट करने की, और कुछ न्यूरॉन्स आपके डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं जब आप सो जाते हैं, और जैसे ही आप जगते हैं उनकी फायरिंग शुरू हो जाती है। वही बीमाल जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, एक्चुअली वो बीमाल उस न्यूरॉन्स को इन्फ्लुएंस करती। यानी कि आपकी सर्कैडियन स्लीप अगर सही है, आपने अगर खाना सही समय से खाया था, उतना गैप आपने अपने शरीर को आराम करने के लिए दिया है, तो आपके न्यूरॉन्स भी बेटर फायर करते हैं। इसीलिए आप अगर कभी देखें तो फास्ट के दिन अगर आपने सुबह खाया और आपको रात को सोने की जरूरत थी, बिकॉज फास्टिंग इज अ वेरी गुड इम्यून ट्रीटमेंट। आई मे बी टेकन इन विद अ सरप्राइज, बट आपका स्लीप वेक बैलेंस आपकी जो फूड फास्टिंग है उससे बहुत ज्यादा ग्राउंड रूट्स तक जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर लाइट की प्लेयर है, यहाँ मैंने ये भी सवाल उठाया कि अगर लाइट ही की प्लेयर है तो क्यों फिर ब्लाइंड लोगों को भी सर्कैडियन रिदम्स होते हैं? नहीं होने चाहिए। जी हाँ, स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और अब मैं डिजीज पर एक एक करके आऊंगी। ये तो हमारी एक होती है इमेज फॉर्मिंग विजन, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो हमारी आंखों से हम देखते हैं। सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करने वाली हमारी एक और विजन होती है जो हमारी नॉन इमेज फॉर्मिंग विजन होती है। वो नॉन इमेज फॉर्मिंग विजन जो होती है, जिसको हम NIF कहते हैं, वो NIF भी जो है वही आधार है हमारी सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करने के लिए। और इसीलिए हमारे शरीर में, मस्तिष्क में विद्यमान हर सेल एक घड़ी के रूप में रहता है और उसकी न्यूरोनल फायरिंग करता है हमारा ये नॉन इमेज फॉर्मिंग विजन। तभी आपको ध्यान होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लाइट कम भी है, आप अंधेरे में भी हैं, आपकी आईलिड्स का बंद होना जरूरी है फॉर अ डार्क टू योर ब्रेन। इसमें अब हम अलग अलग चीजों को लेते हैं, जैसे लेडीज को कई बार व्हेन दे एंटर देयर 30-35 they have some hormonal changes and they start getting some migraine. It has been discovered by scientists and some 15-20 years back कि कुछ खास सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन में जिसकी वजह से हमारी बॉडी को लाइट रेगुलेट करती है, और हमारी आंखों का जो, आप कभी धूप, यहीं से अभी बाहर जरा धूप में जाइए तो आंखें चौंधिया जाती हैं, जिसको हम प्यूपल डायलेशन कहते हैं। हमारी प्यूपल डायलेशन, हमारी स्लीप लेंथ, और यहाँ तक कि माइग्रेन का बढ़ना और घटना लाइट से रिलेटेड है। आप अक्सर देखिए, अगर आप कुछ दिन नहीं सो पाते हैं और माइग्रेन की टेंडेंसी है तो तुरंत माइग्रेन एक्सरबेट हो जाता है।
ये वो सेल्स हैं जो कि बॉडी में हमारी आंखों से, हमारे दिमाग के, हमारे मस्तिष्क के, ब्रेन के बीच में होते हैं। सिर्फ कुछ ही हजार सेल्स हैं, लेकिन इसकी कुछ चीजें बहुत क्लियरली नोन है, जैसे मॉर्निंग ब्राइट लाइट। हमारी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए अगर आप सुबह जगने के बाद कम से कम आधा घंटा, यहाँ तक कि 6 बजे धूप नहीं निकलती, लेकिन वो लाइट भी इतनी होती है सफिशिएंट, मोर देन 10,000 लक्स होती है। मेरी कुछ और स्टडीज हैं जहाँ हमने किया है, मैं सब स्टडीज यहाँ नहीं ला सकती हूँ, लेकिन हमारी जो मॉर्निंग लाइट है अगर आप उसको देखते हैं तो आपकी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि जब आप किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में, यहाँ से आप अमेरिका गए, आपकी जेट लैग की वजह से नींद डिस्टर्ब होती, तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो या तो आपको मेलाटोनिन पिल्स देता है, वही हार्मोन जिसका मैं जिक्र कर रही थी, या फिर कहता है कि सुबह की धूप देखें। इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक और बहुत ही छोटा सा स्टडी, सिर्फ 1 मिनट में रैप अप करूंगी। हमने एक स्टडी की उन वुमेन पर दिल्ली एनसीआर में जो कि दिन से 10-12 घंटे बाहर रहती हैं और हाउसवाइफ्स में एक खास बात होती है, वो दिन में सोती हैं, एक मतलब 1.5-2 घंटे का नैप लेती हैं, और जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो बड़े नियमित रूप से पूरा हफ्ता जागती हैं और रात में ही सो पाती हैं। तो आफ्टरनून नैपिंग में हमने ट्रेंड्स चेंज देखे, लेकिन जो खास बात हमने वीकडे और वीकेंड में देखी कि हम समझते थे कि जो वर्किंग वुमेन है उनकी सर्केडियन क्लॉक, हमारा हाइपोथेसिस था उनकी सर्केडियन क्लॉक काफी अच्छी होगी जो वर्किंग है, क्योंकि वो तो समय से जागती हैं और समय से सोती हैं। लेकिन हमारे को कुछ ऐसा मिला कि वीकडे में जो वर्किंग वुमेन करती हैं, एक्चुअली हाउसवाइफ वो वीकेंड में करती। हाउसवाइफ को दिन में सोने का समय नहीं मिलता, तो वो उस दिन की स्लीप को जो हफ्ते भर कर रही थी उसको स्किप कर जाती है। जबकि वर्किंग वुमेन को जब मौका लगता है वीकेंड में, संडे के दिन बार बार नैप लेती हैं। ये एक्चुअल डेटा है, प्लॉटेड है। इस तरह से दोनों केस में अगर आप अपने रेजीम और शेड्यूल्स चेंज करते हैं तो मान लीजिए कि आप अपने लाइफस्टाइल के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये स्लीप के ऑल्टर्ड टाइमिंग जो हैं यही 45 और 50 के पास जा करके डायबिटीज या डिजीजेस को अंजाम देने वाले हैं। बहुत ब्रीफ में एक मैसेज कि आप सोचते हैं कि आपने समय से खाया, आपने कुछ रेगुलेट नहीं किया, ओबेसिटी मिली। आप देखिए ये लास्ट के कार्टून को देखिए, और जब आपने समय से निश्चित समय अवधि में खाया तो आप फिट रह सकते हैं। अगेन लास्ट वाले कार्टून को देखिए। राइट, लाइफस्टाइल की बात मैं यहीं रैप अप करती हूँ। बहुत ब्रीफली आपको कोविड के बारे में बात करूंगी, क्योंकि कोविड के बारे में हमें बायोलॉजिकल बेसिस पे समझना है, और इसमें चूंकि कुछ जूलॉजिस्ट हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सब लोग जानते हैं कि कोविड हमारे शरीर में एंटर करेगा तो उसे कोई भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही चाहिए हमारे शरीर में, वरना हमारे सेल इसको अपने अंदर घुसने की इजाजत नहीं देंगे। तो इन सेल का एक स्वभाव होता है, ये कार्टून स्टूडेंट्स के लिए टू अंडरस्टैंड इट बेटर। और ये देखिए, ये है कोविड का एक वायरस जो प्रवेश कर जाता है। ये नीचे का आउटसाइड है, ऊपर का इनसाइड है। और अब हम आगे देखते हैं कि होता क्या है, लंग्स में क्या होता है। हेल्दी लंग है, इस पे मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड चेंज कर देती हूँ ग्रीन करके। अब देखिए कितनी सारी स्पेस है और कितनी पतली झिल्लियां हैं इस हेल्दी लंग में। लेकिन जैसे ही वायरस का अटैक होता है तो ये हमारे सेल्स को सेप्सिस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो गई। और जैसे ही हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लो जाने लगती है। प्लीज अंडरस्टैंड, आज की रेलेवेंस में मैं लास्ट पे यहीं पे रैप अप करूंगी कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन कम जाने लगती है उसका क्या महत्व है। सो यहीं पर मैं कह रही हूँ, स्टे ट्यून्ड, लास्ट में मैं इसी पॉइंट पे रैप अप करूंगी। तो जब वायरस का अटैक होता है वो थोड़ी देर पहले गले में रहता है, और जो बेस्ट चीज हम अपने साथ कर सकते हैं, प्लीज कीप ऑन ड्रिंकिंग ल्यूकवार्म वाटर। व्हाट्सएप पर, मीडिया पर ये सारे प्रिकॉशंस आ चुके हैं, लेकिन आज मेरा पर्पस आपको दिखाने का साइंटिफिक रेलेवेंस का है। सो बाकी सब डिस्कशंस हैं, आई जस्ट गो। अब वायरस हिट क्या करता है हमारी बॉडी को, ये भी मैं आपको ब्रीफली बायोलॉजिकली दिखा दूं। हमारी बॉडी से ये जाता है हमारी श्वसन नलियों से हमारे लंग्स तक पहुंचता है, और उसके बाद
फिर ये जो हमारी पतली वाली स्मार्ट सी अच्छी सी परतें थी हमारे लंग्स की, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, उनमें चला जाता है और उसके हर सेल पर जा करके ये गेटवे से एंट्री मांगता है। वही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो हम कह रहे थे, अब ये यहाँ से एंटर करना चाहता है, इनसे फ्यूज करके। ये है इसकी कार्य प्रणाली। यहाँ अटैक करता है, हमारे मेम्ब्रेन से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू अंदर चला जाता है, और अंदर जाते ही फिर ये अपनी और कॉपियां बनाने लगता है, जिसकी वजह से हम लेते तो कुछ ही 1000 वायरस अपनी बॉडी के अंदर है, लेकिन हम जब स्प्रेड करने बैठते हैं तो दे आर इन फार मोर देन मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये एक की रिसेप्टर के थ्रू एंटर करते हैं, और सारी साइंस आज इस ACE2 रिसेप्टर की बात कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ACE2 को, अभी आपने पिछले दिनों सुना था कि काफी जिक्र आ रहा था सिट्रोनेला का और कुछ और प्लांट्स का, कि वो इनहिबिट करते हैं, और क्योंकि इसके आसपास कुछ और भी रिसेप्टर्स हैं जो इसको मदद करते हैं, TMPRSS2 है, जो इसको अंदर जाने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम इनको रोक दें तो आजकल जो अभी ये डेक्सामेथासोन आ रही है जो बीमारी के नाम पर, ये यही इसी ब्लॉकिंग के लेवल पर काम कर रही है। तो अगर हम इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो पेशेंट्स को आराम मिल जाता है। इसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल और इम्यूनिटी से जुड़ी हुई एक और बहुत जरूरी चीज है हाइपर इन्फ्लेमेशन। क्यों बुजुर्गों में ज्यादा प्रभाव है इसका? क्योंकि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। जब भी कोई वायरस या कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में आती है, तो जब वो हमारे अंदर वो क्षमता बनी रहती है जब तक कि हम उन एंटीबॉडीज के द्वारा बीमारी से लड़ सकें, और बुजुर्गों में वो क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। अब मैं उन रैप अप पॉइंट्स पर आ रही हूँ जहां मैं अपनी बात को संक्षेप में खत्म करना चाहूंगी। तो पहली चीज कोविड-19 के साथ रहना है तो दिन में थोड़ी सी धूप जरूर 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 देखिए। कोई सप्लीमेंट, कोई दवाई उस सुबह की आधे घंटे की धूप के जो रिक्वायरमेंट है उसका निदान उस धूप से बेटर नहीं कर सकता। सो लॉकडाउन टाइम में प्लीज मेंटेन, ये आपकी स्लीप की भी टेक केयर करेगा, और ये आपकी इम्यूनिटी की भी टेक केयर करेगा, और आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को बनाए रखेगा। दूसरी चीज, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं लास्ट में ऑक्सीजन सैचुरेशन पर आऊंगी। जैसे ही आप एनॉक्सिक महसूस करें, पहले था जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तो हम बात करते थे कि तापमान देखिए शरीर का, बुखार आ गया तो शायद कोविड सस्पेक्ट है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में ये बढ़ रहा है, हम लोगों की एक अपनी जीनोम एसोसिएशन है, जीनोमिक एसोसिएटिविटी है, जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन ही मार्कर है, ना कि हमारा तापमान। यस, कुछ लोगों को बुखार हो सकता है, बट आई नो मेनी कोविड पेशेंट्स इन दिल्ली जिनको बुखार नहीं हुआ कोविड के चलते। सो प्लीज keep a check on your oxygen saturation, and lastly प्लीज चेक योर लेवल इन्फेक्शन। एक डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट लगता है जिससे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो हमारे अंदर एक भय पैदा हो गया है, कहीं मैं कोविड तो नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, ज़ूलॉजी का प्लेटफॉर्म है, इसको यूटिलाइज कर रही हूँ, आपको कन्वे कर रही हूँ, नहीं आप कोविड नहीं है। जब तक आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हो जाता, जब तक आपका ब्लड काउंट सफर नहीं हो जाता, तब तक आप कतई कोविड नहीं है। और आप अगर बाई चांस टेस्ट पॉजिटिव भी आ गया, आप दूसरों को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस रिसर्च इज ऑल्सो कम। मैं सारी रिसर्चेस तो नहीं उठा के ला सकती थी, बट आई जस्ट ट्राई टू जस्टिफाई द पॉइंट। लाइफस्टाइल, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, कोविड, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड ये मान्यताएं हमारी बदलती रहेंगी, रिसर्च बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, एंड लेट द शो गो ऑन। हम सबको स्वस्थ रूप से 2020 में आगे जाना है, एंड लेट अस वाउच टू आवरसेल्व्स कि हम अपने आसपास के हर व्यक्ति को स्वांता सुखाय भाव से आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल टॉक। बहुत ही अच्छा मैम, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टॉक है आपका। मैम मेरे भी एक प्रॉब्लम है मैम, मुझे रात में नींद नहीं आती है, मॉर्निंग आवर्स में नींद आती है, क्या किया जाए? देखिए, नींद आपको मॉर्निंग में ज्यादा आती है क्योंकि आपकी जो नाइट स्लीप है वो कवर नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया,
आप तो खैर टच में है, कंसल्ट कर सकती हैं, लेकिन बेसिकली आपको अपनी स्लीप शेड्यूल रात में कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइट को जरूर अवॉइड करिए। हम लोग में खास आदत होती है, हमने जो स्टडी भी की थी उसमें हमने देखा आइसक्रीम इज ऑलवेज लव्ड इन द नाइट। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इनिशियली कि रात में ना किसी दिन के किसी और समय में आइसक्रीम खाना, क्योंकि आइसक्रीम खाना तो नहीं छोड़ सकते हैं। सो अपनी डाइट को खास ध्यान दीजिए, डाइट को मॉड्यूलेट करिए, स्लीप काफी हद तक इम्प्रूव होगी। बट व्हाट अबाउट मैम मिल्क? बच्चों को जैसे हम लोग मॉर्निंग आवर्स में मिल्क देते हैं, तो इट शुड ओके और नॉट? मॉर्निंग में जरूर दीजिए। मॉर्निंग में प्रोटीन देना और चीनी मिला करके देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। रात को सोने से पहले कोई भी साइंस, चाहे वो फिजियोलॉजिकल साइंस हो, चाहे वो पेडियाट्रिक साइंस हो, रात के मिल्क को, या बिकॉज प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म जो है शाम को स्लो हो जाता है, और प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिंग हो जाता है, तो सोने से 2 घंटा पहले आपको प्रोटीन भी सजेस्ट नहीं किया जाता। यस जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, बट वो भी फिर अगेन वो डिले करते हैं अदर डाइजेशन को। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। एनी अदर पैनलिस्ट अगर कोई भी कुछ जानना चाहता तो प्लीज। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है मैम। मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? नीलू मैम? या श्योर प्लीज। हाँ, मैं अभी आपने बात करी कि फास्टिंग जो है इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, तो कितने आवर की फास्टिंग हम लोगों को करनी चाहिए? मैडम एक्चुअली मैं इसको कवर नहीं कर पाई, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू कवर दिस पॉइंट। ओके मैम। या मैं आई विल टेक 1 or 2 minutes एक्सप्लेनिंग दिस। जी मैम, जी हाँ जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग जो बाय बर्थ या बाय एवोल्यूशन जो है, हम लोग एक्चुअली में डायर्नल स्पीशीज हैं। मानव जाति पूरी जो है वो डे एक्टिव स्पीशीज है। तो जो डे एक्टिव लोग होते हैं उनके लिए कोई भी हमारी बॉडी प्रोसेसेस ऐसे ही बनती हैं कि हाफ द डे वी आर एक्टिव एंड हाफ द डे वी आर लेस एक्टिव। हम इवॉल्व तो हो गए, हमने आर्टिफिशियल लाइट भी जनरेट कर ली, लाइट एट नाइट भी हम काफी एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम अपने प्राकृतिक स्वभाव को नहीं बदल सकते। और हमारी जो डाइजेस्टिव मशीनरी होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो लिवर होता है, क्योंकि लिवर वो सारी एंजाइम्स हमारे बाकी ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है जो उस एनर्जी को एसिमुलेट करके खींच के अपने अंदर ग्रहण करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लिवर 12 घंटे काम करे और लिवर 12 घंटे रेस्ट करे। तो एक 1 डेज फास्टिंग तो ठीक है, आप एक दिन कर लेंगे, लेकिन डेली तो आप फास्टिंग नहीं कर सकते, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते। तो बेस्ट रेजीम जो होती है, जिसको हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग कहते हैं, वो ये होती है कि आप 12 घंटे लिवर से खूब काम कराइए, लेकिन फिर उसे 12 घंटे आराम दीजिए। कहने का मतलब अगर आप एक पीपी शुगर का टेस्ट लेते हैं तो आप उसको कितनी देर बाद चेक करते हैं? पोस्टप्रांडियल शुगर आप खाने की कितनी देर बाद चेक करते हैं? 2 घंटे बाद। पीपी जो टेस्ट लेते हैं हम, एक फास्ट, जो लोग शुगर टेस्ट करते हैं जानते होंगे कि एक फास्टिंग टेस्ट करते हैं और एक पीपी टेस्ट करते हैं। पीपी टेस्ट यानी कि लिवर को हमारे ब्लड में शुगर पहुंचाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो अगर हमें लिवर को 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कराना है तो हमारे पास खाने की अवधि हो गई 12 घंटे -2, यानी कि हमें 10 घंटे प्रकृति ने खाने की मोहलत दी है। बाकी जो हम खा रहे हैं मैडम, हम सिर्फ अपनी मर्जी से खा रहे हैं और बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। So have a designated window, 10 hours of eating and 14 hours of fasting. पानी is allowed, पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। ओके नीलू मैम, आप तो खजाना है, आपसे तो कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। रियली मैम। हाँ, इसी कड़ी में मैं आगे कल्पना